In a highly controversial statement, Congress leader and leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has said that the fight in India was not about the politics but about the religious freedom and regional identities. Highlighting what he perceived as a threat to religious freedom in India, Gandhi said that the fight is about whether he as a Sikh will be allowed to wear a turban in India, be allowed to wear a kada, be allowed to go on a gurdwara, or not just for him. The fight is for all the religions. Meanwhile, the BJP has also slammed him for the statements that have made. Now the BJP leaders Manjinder Singh Sirsa and RP Singh launched a scathing attack on him and said that I challenge Rahul Gandhi to repeat in India what he is saying about Sikhs. I will file a case against him and I will drag him to court. Let's in fact listen into what Manjinder Singh Sirsa and RP Singh have said. एक जैसी मिल्क की पगड़ी उतारी जाती थी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी। हर सिख की चेकिंग होती थी और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियां उतारी, केस काटे, दाढ़ियां काटी, उनके ककार निकाले और उसका तेल डालकर, पेट्रोल डालकर और एक स्पेशल कोई व्हाइट पाउडर डालकर उनको और गले में टायर डालकर उनको जलाया गया। वे ये इस बात को नहीं बताते कि ये उनके रहते हुआ। और आज कहीं पे भी किसी भी धर्म के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबको बराबर है। अगर सरकार की स्कीम जाती है तो सबको एक जैसी मिलती है। अगर आयुष्मान भारत मिल रहा है तो किसी एक के लिए नहीं, अगर प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि मिली तो किसी एक के लिए नहीं, अगर देश के अंदर लोगों को सिर पे छत या मकान मिल रहे हैं किसी एक के लिए नहीं। रादर अगर वो टारगेट करें मुसलमानों को, मुसलमानों की पॉपुलेशन 15% है और लगभग जो सरकारी जो बेनिफिशरीज है उसमें मुसलमानों की एवरेज जो है वो 33% है। तो देखता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए भारत सरकार की जो स्कीम है सबके लिए एक जैसी है। परंतु हाँ, विदेश में जाकर वैमनस्य फैलाना, विदेश में जाकर इस प्रकार की बात करना, ये दिखता है कि राहुल गांधी की सोच का। परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा कि पगड़ी उतारी जाती थी। All right, my colleague Anand Singh joins us back on the broadcast. Anand, now this is yet another line of series. Now a fresh attack has been made which the Sikh community feels against themselves, and now the BJP is making it a point to contend here, while also this has been seen that Rahul Gandhi is putting up a narrative against anti-Sikh while being on a foreign tour. Yeah, look, Simran, as per whatever Rahul Gandhi was said, he made a comparison that how where some people who wear turbans, while mentioning at the RSS, he said that RSS believes in the idea of one being inferior or superior, whereas the Congress believes in the multiplicity So in multiplicity of all culture, religion and languages. He mentioned about Tamil language. He also mentioned about Punjabi language, Hindi, English speaking people across the country. And he mentioned that this is how the India is complete. And then he said that if someone is wearing a turban, it doesn't mean he All right, Anand, I request you to kindly stay on with us while BJP's Manjinder Singh Sirsa has joined us on the broadcast. Sir, very good morning to you and appreciate you joining me on the broadcast. As of now, this is yet again seen as a comment that has now blown up as an issue for the Congress, while the tours of Rahul Gandhi is yet often very controversial. But this particular statement against the Sikhs of the community has now been criticized. How does the BJP view in responding to these comments that have now come across as a recent by Rahul Gandhi? It is not about the BJP Congress. It's about what Rahul Gandhi is spreading, why Rahul Gandhi is spreading so much of hate against Sikh community. And especially when he's out of country, he should have given respect to the Sikhs rather than by saying कि आज देश के अंदर ये माहौल है कि क्या सिख दस्तार पहन सकता है, कड़ा पहन सकता है, गुरुद्वारे जा सकता है या नहीं जा सकता। तो ये बड़ा क्लियरली शो करता है कि राहुल गांधी एक सिखों के खिलाफ नफरत फैलाने का एक माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस ने 1984 से पहले 1980 के दशक में इसी तरह से सिखों के खिलाफ नफरत फैलाई। मुझे याद है कि तब अखबारों के अंदर इश्तिहार दिया गया था जिसमें लिखा गया था
टीवी जिसके अंदर एक टैक्सी के अंदर सिख को दिखाया गया था और पूछा गया था क्या इसको देख के तुम्हें डर लगता है। तो ये जो हमारे खिलाफ नफरत का माहौल सिरजा जा रहा है, हमारे खिलाफ ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, जबकि हम जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी दस्तार बांधकर गुरुद्वारे जाते हैं। तो गुरुद्वारों पे कभी खतरा हो सकता है सिखों के दस्तार को, तो सपने में भी नहीं कोई सोच सकता। लेकिन कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे कारण, इसके पीछे नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करने की जो सोच है, उसके लिए उन्होंने सिखों के नाम का, सिखों के दस्तार का, सिखों के गुरुद्वारा का इस्तेमाल किया है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। पर सर, जिस तरीके से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं राहुल गांधी की, वो सिर्फ सिख कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है, पर अगर हम देखते हैं तो आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी नए पर्सपेक्टिव शेयर किए गए हैं। जब वर्जीनिया में बात की जाए कि यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है, तो चाहे ये बीजेपी का हो या ना हो, बट कॉन्स्टिट्यूशनली एक नया पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है जब राहुल गांधी फॉरेन टूर पे जा रहे हैं और ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि जिसमें जो इंडिया की स्ट्रेंथनिंग है उस पे कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस उठते हैं। देखिए, राहुल गांधी का सपना सत्ता में आने का है, उसके लिए वो चीन की अमदाद ले रहे हैं, पाकिस्तान से ले रहे हैं, अमेरिका से वो अपनी इन लोगों से अमदाद लेते हैं, इनसे सपोर्ट लेते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान उनको मीठे आम भेजता है, उनको कहता है कि राहुल जी को हम आम भेज रहे हैं। अमेरिका के राजदूत आते हैं तो कांग्रेस के लीडरों को आकर मिलते हैं। चाइना जो है, चाइना की बात राहुल गांधी वहां जाकर करते हैं, चाइना की सपोर्ट करते हैं, चाइना की इकोनॉमी की बात करते हैं, वहां की डेवलपमेंट की, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की, प्रोडक्शन की, और यहाँ तक कि वहां की डेमोक्रेसी की बातें करते हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी का ये सपना है कि मैं किसी तरीके सत्ता पे हासिल हूँ, और उसके लिए वो विदेशी ताकतों की भी सपोर्ट ले रहे हैं। और यही कारण है कि विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं। जो विदेशी मुल्क सुनना चाहते हैं, जो अमेरिका सुनना चाहता है, जो पाकिस्तान सुनना चाहता है, जो चीन सुनना चाहता है, वो राहुल गांधी वो जाकर बोलते हैं, और उसके एवज में चाहे चीन हो उनको फंड्स भी देता है और उनकी सपोर्ट करते हैं। तो ये एक उनका पर्पस है, हमारी इंस्टीट्यूशंस को डिमीन करना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिमीन करना, देश के रिलीजन्स को, देश की कम्युनिटीज को डिमीन करना। यही कारण है कि इस तरह की नफरत फैलाने का एक माहौल बना रहे हैं, एक ऐसा माहौल सिरज रहे हैं जिससे सिखों को खतरा खड़ा हो, उनके खिलाफ नफरत भरा को काम हो, और उसको फिर राजनीतिक रंग देकर वो सत्ता हासिल कर सकें, सियासत कर सकें। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.